Set is collection of well-defined objects. One example, set of natural numbers you can take. Yes, Shruti, any finite set? For finite set? Yes, anyone? Multiples of 2 less than 50. Huh? Multiples of 2 less than 50. Multiples of 2 less than 50. तो निगेटिव कंसीडर करें या सिर्फ पॉजिटिव से ले सकते हैं हम लोग? We can take set of natural. See, we can take set of natural numbers, or you can see x equals to 2n, n belongs to n, or n is less equal to 50. Is it correct? Can we write this? है ना? Yes or no, beta? Rishi, can we write multiple of 2? Ma'am, I am not able to see. I am not visible to you. Am I visible, Shruti? Yes, ma'am. Okay, okay. Rishi, network problem हो सकता है बेटा. Am I audible now? Ma'am, हाँ, okay, okay. Ma'am, you are audible, but I am not able to see. Oh, okay, okay. ठीक है. So the example which you have given, that multiple of 2, we can take less equal to 50. तो यहाँ पे n less equal to 50 नहीं होगा, twice of n less equal to 50 होने वाला है. ठीक है. तो ये x जो है, x का सेट जो ये बनने वाला है, तो ये 50 तक ही जाएगा. तो n की वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पे? n लेस देन और इक्वल टू 25. ठीक है, लिखा तो भी चलेगा, और आप लेस देन 10, लेस देन 5 ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट. ठीक है. सो देयर आर टू what we can say, two methods in which we can represent a set. That is, first one is list method. ठीक है ना? First one is list method, or you can write it as a roster form or roster method also. और second is set builder. ठीक है. लिस्ट मेथड मतलब क्या? ये जो सेट के एलिमेंट्स है वो आप लिस्ट फॉर्म में देते हो. ठीक है. आपको अगर मैंने बोला नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, तो आप मुझे फटाक से बोल देते हो कि 1 2 3 4 5 6 टिल 10 आप लिख पाते हो. और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है सेट का, तो इसमें आपको जो सेट के एलिमेंट्स है उस पे कंडीशन देनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम हैविंग वन सेट 1 क्यूब 2 क्यूब, मतलब अगर डायरेक्टली लिखा जाए तो 1 8 27 ऐसे में लिखती हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ तो भी कंडीशन देते हैं. सपोज 1000 लिखा मैंने यहाँ पे, ये 10 का क्यूब आ जाता है. ठीक है. मेरे पास ये एक सेट है A having elements 1 8 27 till 1000. Okay, so this set I have given in list form 1 2 3 sorry 1 8 27, all elements I have given, first element, second, third, है ना, and last element also I have given. Suppose I want to write this in set builder form, set builder method or form also you can write. ठीक है. So what will be the condition here so that I can write it in the set builder form? What will be the condition? मुझे ये A सेट जो है, जो मैंने लिस्ट फॉर्म में दिया है, वो मुझे सेट बिल्डर में सेट बनाना है. कुछ तो भी कंडीशन देके आपको सेट बनाना है. ओके. सो व्हाट विल बी देयर? यस श्रुति. श्रुति इज ओनली देयर आई थिंक. यस श्रुति सिर्फ आप. Can you repeat what you said? यस बेटा. हाउ वी कैन राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म? Ma'am, that till that number, na? हाँ, yes, these all numbers. Already I have mentioned here. 1 is 1 cube, 8 is 2 cube, है ना? Ma'am, x belongs to n cube, where n belongs to natural number. n belongs to natural number. ठीक है ना? कहाँ तक लिए हैं हमने? Less than
what you Okay. said? Yes, ma'am. ठीक है ना? So see, whenever we are will form the set, ठीक है ना? When we'll give the condition, the notation for this is set. Always we are writing set in curly brackets. Its elements we are writing curly braces. So set of X. This set A having elements, but these elements set of X such that X equals to, and what are the condition will be there for that all elements which that will be applicable for that elements. So that condition will write X equals to n cube. ठीक है? Now n, where this n belongs? Okay, so n we have taken from set of natural number. Natural number starts from the number 1, 1, 2, 3 onwards. ठीक है, n start हो गया 1 से, लेकिन उसको हमने स्टॉप कर दिया क्योंकि हमें फाइनाइट सेट का एग्जांपल देना था. So what we have written, n is less equal to 10. So n can take 10 value, yes or no? If I'll write here n is strictly less than 10, so which value n can take? Last value, what will be there? Less than 1000, which No. If I have written here n is, that will be okay. For X, you have told, no? If n is less than 10, so which will be the values of n? We can take from set of natural numbers. If we'll write here n is less than 10. Values from 1 to 9. Yes, n will be from 1 to 9. Strictly less than 10 means will not take 10. I have written equal. N is less equal to 10, which means either n will be less than 10 or n will be equal to 10. तो और की कंडीशन है, कंसीडर तो करनी ही पड़ेगी, है ना? यस और नो? तो यहाँ पे मैंने 10 लिया है. Now this set I have represented in set builder form. Set builder form. ठीक है? समझ में आया? Any doubt? Okay. Now the same set. If the question is write the given set in a roster form or list form, अगर ऐसे बोला, और इसको हम tabular भी बोल सकते हैं, है ना? ठीक है ना? तो ये list form हम कैसे लिख सकते हैं? देखो. Now here roster method, list method, roster form. कैसे लिखोगे? N is 1, then X equals to 1 cube, that will be 1. If N is 2, मतलब 1 cube, 2 cube, 3 cube, कहाँ तक जाएगा ये? 10 cube तक जाएगा. 10 cube. Elements you will write, it will be equals to 1, 8, 27, 64 till 10,000. ठीक है? Getting all? Getting this? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है. अब मुझे बताओ, सपोज आपको मॉल से कुछ तो भी लाना है, तो आप लिस्ट बनाओगे या सेट बिल्डर फॉर्म से लिखोगे? वो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिख दोगे तो मॉल वाला मॉल बंद करके भाग जाएगा, है ना? उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा. सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द this and this, means if the list you will give, then it will be easy to understand. हाँ, if we'll give it in the list form, ठीक है ना? जो भी है क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आप देते हो और उतनी चीजें आपको मिल जाती है. ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख नहीं पाते उसको. ठीक है ना? सो डोंट ट्राई टू गिव द लिस्ट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. हाँ. Okay, so got it now? How we can represent the set? Okay, no doubt. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. Now मैम ये अलग क्लास वर्क में लिखना है क्या? yes. ठीक है ना? We will solve here NCERT exercise also, no? We are solving, so you have to write all questions. ठीक है? चलो फिर we'll see after this concept we'll see the exercise 1.1. I'll share the screen so that you can get the questions. Okay. Are you able to see the screen, students?
ऋषि एंड श्रुति? Yes, ma'am. ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1.1. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? ये देखो सेट्स पे एग्जांपल्स तो सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ये सेट है या नहीं वो भी तो आपको पता होना है. अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि कलेक्शन ऑफ व्हाट वी कैन से ऑल स्टूडेंट्स, मतलब जिसकी हाइट ज्यादा है, हाईएस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है ना, ये सेट नहीं बन सकता है क्योंकि हर साल अलग अलग बच्चे रहेंगे क्लास में, तो उनमें से हाईएस्ट तो कोई और बच्चा रहेगा ना, हर एक साल वो चेंज होने वाला है, सो इट विल नॉट बी अ सेट, है ना. वी नो ऑलरेडी दैट सेट इज अ वेल डिफाइंड, व्हाट वी कैन से, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, Yes, ma'am. so you see this question, just a minute, sorry. 1.2 हो गई क्या स्टार्ट? ओके. Is it visible now? 1.1. Okay, so which of the following are sets? Justify your answer. First is the collection of all the months of a year beginning with the letter J. Yes, Shruti. Ma'am, it is a set. Yes. कौन Yes. से months होने वाले हैं? जनवरी, January, June, July. Yeah, that's it. बस 3 ही होने वाले. Finite. हाँ. It is a finite set. Yes, Finite ma'am. होगा, ठीक है. तो ये सेट है और आप जस्टिफाई कर सकते हो, तो आप वहां पे सेट के एलिमेंट्स दे दो. जनवरी होगा आपका, जुलाई होगा, जून होगा, ठीक है ना. June, July. सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. No, ma'am. It will change person wise, yes or no? Yes, yes, ma'am. It will not be a set. A team of 11 best cricket batsmen of the world, ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है. So it will not be a set. Getting? Yes, ma'am. The collection of all boys in your class. Now you are in 11th standard. The total number of boys, ठीक है ना. So it will be a set, yes or no? Yes, ma'am, it is. The collection of all natural numbers less than 100, less than 100. Ma'am, it is a set. 19 means 1 to 19 finite elements are there. Okay, so it will be Yes. clearly it will be a set. A collection of novels written by the writer Munshi Premchand. It will be obviously it will be a It will finite be set, set. है ना. Yes. The collection of all even integers. See student, set of integers is an infinite set, है ना. Even integers, ठीक है. इंटीजर सेट अगर सेपरेट पार्ट करने तो ऑल इवन और ऑड सेपरेट कर दोगे, ठीक है, तो वो भी सेट ही बनेगा. सारे इवन नंबर्स का भी एक सेट बनेगा, सारे ऑड नंबर्स का भी एक सेट बनेगा. समझ में आ रहा है आपको? तो ये भी एक सेट ही होगा इवन इंटीजर्स का, ठीक है. एनी डाउट? मैम, लेकिन फिर ये इनफाइनाइट होगा ना? हाँ, इनफाइनाइट होगा. हमें क्या चेक करना है बेटा? सेट चेक करना है, सेट है या नहीं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें मतलब कोई मैटर नहीं करते, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है. ओके. हाँ मैम. नेक्स्ट 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. It is a set. इट विल बी अ सेट. बहुत सारे क्वेश्चंस है. काउंट करते बैठो, ठीक है. अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. हाँ, तो ये भी चेंज होगा पर्सन वाइज, चेंज होगा. हाँ, ठीक है ना. हाँ मैम. तो ये सेट नहीं होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बोर्ड पे. लेट A be a set having elements 1 2 3 4 5 6, ठीक है. एक्सरसाइज 1.1 question number 2, set A having elements 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है. Insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to, है ना, in the blank spaces. Screen is visible to you all? Yes ma'am. Okay, so first one, 5 is there or not?
5 is Yes, there. ma'am. It belongs to A. We can write 5 belongs to A. ठीक है. Second is Does not belong to. it does not belong to A. Third one, 0. 0 is there. Does not belongs to. Yes, 0 does not belongs to A. Fourth one, 4. Belongs to. It will belong to 4 belong to A. Fifth one, 2. Belong to. Yes, 2 belongs to A. Sixth one, Does not belong to. 10 is not there because only 6 elements are there. 10 does not belongs to A. ठीक है? Got it? Yes, ma'am. Okay. Third question. Write the following sets in roster form. चलो अभी ये लिस्ट में लिखना है आपको. ठीक है ना? Can I erase it? Can I erase the board? Yes, ma'am. Okay. चलो क्या है थर्ड क्वेश्चन. रोस्टर फॉर्म में लिखना है. थर्ड उसमें है फर्स्ट. क्या बोला है? सेट A is a set of x such that x is an integer. x दिया है इंटीजर. तो इंटीजर कोई भी हो सकता है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव. और एक कंडीशन दी है -3 to 7 के बीच में है. ठीक है, -3 to 7 के बीच में है. एंड आई हैव नॉट टोल्ड बिकॉज इज आवर फर्स्ट डे. ठीक है, सो इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर. In this set, all elements are taking discrete values. ठीक है ना? They are jumping on the next number. Suppose we are counting the number of benches in your class. We are not counting from means 0. We are not taking, no. We are starting from 1, 1, 2, 3. We are not counting like 1.5 bench. हाँ, अगर टूटा फूटा है तो 1.5 बोल सकते हैं, लेकिन वो वैसे काउंटेबल नहीं होगा. 1, 2, 3 है ना? समझ में आ रहा है? तो इंटीजर्स आर टेकिंग डिस्क्रीट नंबर्स. ओके, सो हियर -3 to 7. -3 to 7 भाई क्लियरली नहीं आने वाले, ये स्ट्रिक्टली है. वी कैन नॉट टेक इट. तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा नंबर कौन है? मैम -2, -1, 0 से. यस, सो इफ वी ड्रॉ द रियल नंबर लाइन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक जाएगा ये? 6 तक जाएगा. 6 तक. कौन से नंबर्स लेने वाले हम लोग? ये 3, 4 और ये 5 ही लिख दिया. चलो आपके लिए कुछ भी. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, सो दिस सेट विल कंटेन ए. सेट ही बोला है ना इन्होंने? ए. यस यस, ए इज देयर. बोर्ड इज विजिबल ना? बोर्ड आल्सो विजिबल? यस मैम. ओके ओके. So this set will have -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और आपकी जो एरर होती है ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में, ये मैं आपको बताती हूँ. अगर कंटिन्यूएशन में नंबर से तो आप कॉमा करके डॉट 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 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई तो भी नंबर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा दिस नंबर विल नॉट बिलोंग टू द सेट. ओके, इफ इन कंटिन्यूएशन यू आर राइटिंग. ठीक है ना? विल टेक द एग्जांपल्स, यू विल गेट द आइडिया. ओके, नो डाउट? नो डाउट इन द फर्स्ट? ओके, ऋषि, आर यू देयर? लेट मी सी. आर यू देयर ऋषि? बढ़े. ओके, लेट मी. सेट बी, set of x such that x is a natural number. Natural number starts from 1 less than 6. 6 से छोटा और 1 से तो स्टार्ट होता है भाई. तो क्यों, कौन से वैल्यूज लेने वाला है ये क्लियरली? 1 से 5 तक. 1, 2, 3, 4, 5. गेटिंग है ना? वेरी इजी. C, set of x such that x is a 2-digit natural number. 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. ठीक है, आपको क्या बोला है? x ये 2-digit natural number है, मतलब ये कहां से कहां तक आ सकता है? 10 से 99 तक, बराबर. लेकिन और उन्होंने क्या कंडीशन दी है कि जिसकी सम 8 है.
जो डिजिट्स की सम 8 है, ऐसे हमें 2 डिजिट नंबर्स लेने हैं। चलो तो अभी आप शुरू हो जाओ। कैसे करोगे? 10 to 99 के बीच में तो नंबर आने वाला है। 3 डिजिट नंबर क्लियरली नहीं बोला इन्होंने, तो क्या होगा? 8 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 0 + 8 लिख सकते हैं, लेकिन 0 8 से पहले नहीं ले सकते क्योंकि वो 1 डिजिट नंबर होगा, है ना। वी कैन राइट दिस 8 एज 8 + 0, सो द नंबर विल बी 80। ये इक्वल नहीं होगा, नहीं तो बोल दोगे मैम ने 8 + 0 को 80 लिख दिया, गलत मैथ्स, है ना। एरो बना दिया मैंने अभी। यहाँ पे 1 + 7 और 7 + 1 क्या होगा? 8 होता है, तो ये 17 भी होगा, 71 भी होगा, बराबर, ठीक है ना। 2 + 6 यस, 8, 0 मैं पेयर्स लिखती हूँ यहाँ पे। 1, 7, 7, 1, 2, 6, 6, 2, 4, 4, 5, 3, 3, 5 और कुछ बचा कुचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और है क्या कुछ? 9 और -1 है, लेकिन वो तो जो डिजिट हम ले रहे हैं वो तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर निगेटिव तो नहीं होता है, बराबर, ठीक है। तो कौन से नंबर्स आएंगे ये सेट में? कौन सा क्वेश्चन? ये थर्ड क्वेश्चन है ना। C set will have 80, 17, 71, then 26, बराबर है ना। 26, then 62, 62, then 53, 35, 53, 35 और 44। 44 को उल्टा लिखोगे तो फिर से 44 ही आने वाला है। और सेट क्या बोलता है? अगर आपको सेट में एलिमेंट को इंक्लूड करवाना है तो उसको एक ही बार, मतलब हर एक को एक ही बार स्वीट मिलेगा, बार बार नहीं मांगना वहां पे, ठीक है, ठीक है ना। स्वीट एक ही बार मिलता है, तो आप एक ही बार सेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो द एलिमेंट्स, सॉरी, द 2 डिजिट नंबर whose sum is 8 are 80, 17, 71, 26, 62, 53, 35 and 44. Any doubt? Any doubt in this? No doubt. ठीक है ना। No. डाउट होता भी है तो आप पूछते ही हो, है ना, आप पूछते हो। नेक्स्ट, फोर्थ इज set of x. The D set is set of x such that x is a prime number. Now what is meant by prime number? चलो, क्या होता है prime number? which is not divisible by It is not. divisible. We cannot write the factors of the numbers, है ना। एक ही फैक्टर हम एक ही बार लिख सकते हैं उसको। अगर 17 है तो 1 × 17 के अलावा हम कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ, आपको लगा तो 17 × 1 भी कर दो, लेकिन हम उसके और फैक्टर्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। विच इज डिवाइजर ऑफ 60? 60 के डिवाइजर्स और वो प्राइम चाहिए। चलो कौन से हैं? 2, 3 and और कौन? 5 और बस ना। अभी क्या सोचते हो? 2, 3, 5 आने वाला है ना। 5 के बाद जो भी वो अभी जो भी आपके मतलब डिवाइजर्स आने वाले हैं वो कंपोजिट आने वाले हैं, ठीक है ना। सो डिवाइजर्स ऑफ 60 एंड प्राइम नंबर, दोनों कंडीशन एक साथ होनी है आपको। तो क्या होगा? सेट डी हैविंग एलिमेंट्स 2, 3, 5। समझ में आ रहा है? अभी देखो ये आपने कैसे जल्दी बता दिया 2, 3, 5। अभी आप जो सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको दिया है तो उससे आप लिस्ट मेथड मतलब लिस्ट फॉर्म तो इजीली लिख पाते हो, लेकिन लिस्ट फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना, मतलब जैसे कोडिंग रहता है ना, कोडिंग तो वैसे देनी पड़ती है इसको। अभी अगर मैंने आपको दिया 2, 3, 5 ये लिस्ट में दिया, चलो सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ बोला तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे।
सिर्फ वेट करोगे मैम क्या लिखते हैं बोर्ड पे, है ना। अगर मैंने आपको 2 3 5 बोल दिया तो क्या करोगे, वी कैन टेक इट इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, क्लियर है ना कंडीशन, वो भी यही आने वाला है 2 3 5, ये all are prime number, 2 is the only number which is even and prime, ठीक है। बाकी सारे इवन नंबर्स 2 छोड़ के सारे इवन नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से डिविजिबल है मतलब वो कंपोजिट है, yes or no, are you getting all? So 2 Yes, is the ma'am. only prime number which is even, remaining all prime numbers are odd, all prime numbers are odd except 2, ठीक है, लिख दो ये मार्जिन में, all prime numbers are odd except 2, 2 is the only natural number which is prime and even, लिख दिए, ओके। चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, बहुत ही टी टी ओ ओ ऐसे दिख रहा है मुझे, है ना, आर भी दिख रहा है। चलो कौन से है, और सेट क्या बोलता है, अगर मेरे सेट में एलिमेंट्स लिखने हैं तो एक एक बार ही लिखना है, डबल नहीं आना चाहिए, डबल आ गए तो आप गलत, ठीक है। तो क्या होगा मैम, टी आर आई ट्रिगोनोमेट्री, बराबर। चलो टी आर आई आर आई आई जी ओ एन ओ एन एम एम ई और वाई, हाँ एंड वाई, एंड वाई, ठीक है। एक्चुअल ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखो, अगर आपको कोई भी वर्ड दिया है तो और आपको उसके लेटर सेट में लिखने के लिए बोले हैं तो नंबर ऑफ लेटर्स शुड बी लेस इक्वल टू दिस, नहीं तो कुछ भी लिखते बैठोगे उसमें एबीसीडी, वैसे मत करो, है ना, उसमें से ही लिखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 is less equal to 12, यस, चलेगा। हाँ। Next question, sixth, the set of all letters in the word better, क्या होगा, बी ई टी एन आर, व्हाट्सएप चैटिंग की लैंग्वेज बेटर, है ना, ठीक है। सो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सेट, 1 2 3 4, getting, so this set, the last example, sixth example, this set will include only 4 letters B E T R, okay, got it, edit Yes. out, okay। Next No, ma'am. question, next question, अरे 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 कहाँ भाग गया ये, just wait, ये लैपटॉप बोल रहा है 1.2 कब स्टार्ट करोगे, इसलिए वो भाग रहा है आगे, है ना, ठीक है। हाँ वही बोल रहा है वो, मुझसे भी ऐसी ही बात कर रहा है। चलो फोर्थ ना, हाँ फोर्थ दिख रहा है ना, फोर्थ एक क्वेश्चन, हाँ मैम दिख रहा है। ओके, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मैंने बोला ना आपको, ऐसा आपको वो देख के आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं, 3 6 9 12, फर्स्ट इज 3 6 9 12, फर्स्ट है 9 12, कितने नंबर्स है इसमें, सिर्फ 4 ही नंबर्स है, और मुझे तो ऐसे दिख रहा है कि ये 3 के मल्टीपल्स है, बराबर, 3 के मल्टीपल्स है, तो कैसे लिखोगे मैम, x such that x belongs x such that x is equal to 3n and x belongs to natural number, x belongs to natural number, और
x नहीं श्रुति, n लो ना नेचुरल नंबर में, क्योंकि x इक्वल्स टू आप जो भी लिखते हो ना उस पे ही कंडीशन लिखनी है। n नेचुरल नंबर है तो फिर तो 3 के सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे, 3 1 जा 3, देन 6 9 12 सारे आ जाएंगे। उनको स्टॉप करवाना है, स्टॉप करना है उनको। कहाँ स्टॉप करने वाले हो? 3 4 जा 12, तो फोर्थ मल्टीपल लास्ट है तो क्या होगा? हाँ n इज लेस इक्वल टू 4 लिखो 4 और n इज लेस देन 5 लिखो, कुछ भी चलता है, मैथ्स में कुछ भी चलता है, लेकिन स्टेप्स करेक्ट चाहिए और लिखो ठीक से, ठीक है? There are n number of ways to write the answer, but it should be correct in said builder form. ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? हाँ मैम। डाउट है? नहीं होगा ना डाउट, डाउट कैसे होगा? ओके चलो नेक्स्ट 2 4 8 16 32 सेकेंड 2 4 क्या है 8 16 32 तू तो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। 2 4 6 था, 6 नहीं लिया, 8 लिया, 10 भी तो है, 2 raised to n आएगा ना? यस 2 raised to n will come। ठीक है, समझ में आया? 2 के मल्टीपल्स तो दिख रहे हैं लेकिन वो क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूएशन में नहीं है, कुछ कुछ उन्होंने छोड़ दिए हैं, मतलब वो क्लियरली 2 के पावर से। तो कैसा लिखोगे? It is a set of x such that x equals to 2 raised to n, first power, second, third, fourth, fifth. n belongs to natural number and n less equals to 5. Is it visible this side on the board? दिख रहा है क्या? Yes ma'am. Any doubt? No. लिख पाओगे? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करो ना ठीक से, आपकी बहुत प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं होता है कि एक टॉपिक उस पे एक ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं रहता। रेफरेंसेस में कैसे रहता है, टॉपिक्स बहुत सारे रहते हैं लेकिन उस पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कम रहते हैं। एनसीईआरटी आप ठीक से सॉल्व करो ना, मैं बार बार बोलती हूँ ये, आप एनसीईआरटी सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो नेक्स्ट है 5 25 125 625। शायद से मुझे ये भी 5 के पावर से लग रहे हैं। ठीक है, करेक्ट? 5 के पावर्स है ना? यस मैम। हाँ, सो क्या आएगा फिर ये सेट? थर्ड वन, सेट ऑफ x such that x equals to 5 raised to n, 5 raised to belongs n, to n, और कहाँ तक स्टॉप करना है, कहाँ तक करवाना है n? 1 2 3 4 तक ही है। ठीक है, 4 फोर्थ क्या है? 2 4 6 और ऑनवर्ड्स दिया है, ये तो क्लियरली इनफाइनाइट सेट है। तो क्या दिख रहा है आपको? 2 4 6 से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? ये मल्टीपल्स है 2 के और इनफाइनाइट मल्टीपल्स है, हाँ या ना? इनफाइनाइट मल्टीपल्स आर देयर। हाँ मैम। Okay, so how we can write set of x such that x equals to twice of n and n belongs to n। ये कहाँ पे भी स्टॉप नहीं हो रहा है तो हम भी नहीं स्टॉप करेंगे उसको, हम बोल देंगे कि ये नेचुरल नंबर का है n, तो वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी नेचुरल नंबर से उतने मल्टीपल्स लेगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर ना? नेक्स्ट फिफ्थ 1 4 9 till 100। ये तो मुझे तो स्क्वायर लग रहे हैं, है ना? स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और वो 10 का स्क्वायर 100 है लास्ट में। तो ये सारे स्क्वायर है, तो कैसे लिखोगे इसको? सेट ऑफ x मैम x such that x is equal to n square। Yes, very good. And n is greater equal to 10। Less equal to 10 है ना? हाँ, less equal Less to equal 10। to 10। Getting? No doubt? No ma'am। Yes, Rishi, Aditya, any doubt is there beta? Ma'am, this is getting network problem. Am I audible na? But Yes, you are audible. okay, what I'll do, I'm recording the lecture now, so I'll send you the link so that you can see Okay, it, ma'am. है ना? And if you are having NCERT, so in that we have started with the exercise 1.1. If you have the NCERT, you can solve it. Okay? Yes, ma'am. Yes.
ओके ओके, चलो तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है. व्हाट इज द टाइम? 12:27. स्टूडेंट्स विल कंप्लीट फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ. ठीक है ना? ओरली एंड यू राइट इट इन द नोटबुक. चलो तो क्या है फिफ्थ में? फर्स्ट, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर. बोल दो ऑड नेचुरल नंबर कौन से नेचुरल नंबर्स तो पता है. इनफाइनाइट 1 3 5 1 3 5 7 जो भी ऑड नंबर है वो लिख दो और डॉट 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 कर दो. बी, एक्स इज एन इंटीजर. एक्स तो इंटीजर है भाई, लेकिन क्या बोलते हैं उसको कि -½ और 9/2 के बीच में. -½ और 9/2. चलो रियल नंबर लाइन निकालनी पड़ेगी. -½ के बाद कौन सा इंटीजर है? मैम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. 9/2 मतलब क्या? 4.5 है ना? 4.5 है. और वो 4.5 को नहीं ले रहा है, मतलब उससे पहले ही ले रहा है. 9/2 मतलब 4.5. तो ये इंटीजर्स आएंगे. ठीक है? सो द सेट विल हैव 0 1 2 3 4. गॉट इट? एनी डाउट? नो मैम. ठीक है. नेक्स्ट, x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस इक्वल टू 4. चलो आ गया मेरा फेवरेट क्वेश्चन. x स्क्वायर लेस इक्वल टू 4. स्क्वायर वेरिएबल माइनस में भी आएंगे ना फिर? हाँ हाँ आएंगे ना. x इंटीजर है ना, इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं, माइनस प्लस. -2 -1 0 1 2. यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. x स्क्वायर लेस इक्वल टू 4. 4 बोले तो 2 का स्क्वायर. जब x स्क्वायर कोई वेरिएबल स्क्वायर कोई क्वांटिटी के स्क्वायर से लेस इक्वल होता है तो वो जो x है वो कहां से कहां तक होगा? उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट और निगेटिव स्क्वायर रूट के बीच में. तो x कौन से वैल्यूज लेगा यहाँ पे? x will take the values in between -2 to and 2. ठीक है, समझ में आ रहा है? -2 -1 0 1 2 मींस +-1 +-2 और 0. न्यूट्रल पॉइंट 0 जो किसी का नहीं है, नेगेटिव नंबर्स का भी नहीं है और पॉजिटिव का भी नहीं है, अकेला है वो. उसके अकेले की एक की टीम है सिर्फ 0 की, है ना? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव. चलो नेक्स्ट, x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल. बोलो श्रुति. LOY and A. LOY and A. ठीक है ना? नो डाउट? No. नेक्स्ट, x is a month of a year not having 31 days. चलो काउंट करो. 31 days. फरवरी आएगा, अप्रैल आएगा, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर. बस. ठीक है, क्लियर ना? नेक्स्ट, Yes. x is a consonant in the English alphabet which precedes k. चलो कौन से लेटर्स आएंगे? B C D F G H G H I. ठीक है ना? J आएगा ना? J आएगा. हाँ, J आएगा, है ना? ओके. नेक्स्ट, सिक्स्थ इज मैच each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form. चलो अभी देखो जल्दी जल्दी. 1 2 3 6 2 3 ये क्लियरली थर्ड जो है मैथमेटिक्स का ही स्पेलिंग है. 1 3 5 7 9 ये तो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं मुझे. ठीक है, चलो अभी A B C D दिया है तो D और थर्ड ही आने वाला है. थर्ड के साथ D ही आने वाला है, बराबर? चलो एक कट हो गया. 2 और 3 both are the prime divisors. 4 और B. 2 to A है ना, बराबर? और क्या बोला आपने? 4 to B. और नेचुरल नंबर है क्या? बराबर है. लेस देन 10 है क्या? हाँ है. तो 4 to B आएगा. और क्या है बचा कुचा? 1 and C. डिवाइजर ऑफ 6 और नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 3 6, बराबर? Yes ma'am. ओके, कंप्लीटेड? नो डाउट? Yes ma'am. No ma'am. ओके ओके. चलो तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किए हैं. अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थैंक यू. Thank you ma'am.